So very, very warm welcome to you again on for this very interesting and very timely topic for the Ambedkarite movement today. And this is our fourth session today. And on a very short notice, I could request Bhante ji to come. He's so busy. He's actually nurturing one very elderly Bhante, elderly monk in Bombay. And I think that's expression of his friendship, of his emotion for his fellow traveler on the path. So in this busy schedule he could take some time out. So at the outset only, I would like to express my gratitude and thanks due to Bhante for joining us today. A brief introduction before I request Bhante to take over and talk about his topic. Bhante has been ordained for now almost 12 years, right, Bhante? Yep. And he's from Nagpur, and he had made a vow when he became a Bhante that he will not work in Nagpur area, because he studied in Goa, he lived in Kerala for a long time. He dedicated his life to spread whatever way he can the teachings of the Buddha in the state of Kerala, Goa, and Gujarat. So he has worked in all these places, and then ultimately he made Gujarat his base. And with his engagement with the society, with his hard work there, he has created a base of devotees and followers of Buddhism in Gujarat. And another vow that he had is that he would like to commit also himself to spreading a word about Ambedkarite movement throughout the world. And therefore he has been a kind of a wanderer in real sense. He's a traveler in the real sense, that he has gone to 27 countries with the message of Baba Saheb Ambedkar, talking about the great movement of revival taking place in this country. And as a part of his mission, he has organized 4 international conferences. And we know that organizing conference is not a small job. It's a big job. You have to manage a lot of things, get people, a lot of logistical work. So he had managed to organize 4 international conferences, and his 5th one, a kind of inter-religious dialogue or interfaith conference, is coming up in Bombay. So Bhante, I wish you all the best for that. Thank you. He's not only involved in the Buddhist work, but he's also very much involved in what we can call social engagement. He's very much engaged with the society, and during the COVID relief fund relief work, he has helped a lot of people, particularly with buying the medical equipments, providing them relief work, almost at the tune of 1 crore of rupees he has mobilized in order to help the people. He's planning to organize the monks all over the places. As a move towards that, he's organizing a Sangha Dana program of 300 monks in the city of Nagpur very soon. Very early on, he started with a foundation called Sangha Foundation, and that began as a small plant which has now grown up, and Sangha has really acquired a wonderful dimension and serving the cause of Ambedkarite movement. Through his contacts with the Buddhists in Thailand and other countries, he could mobilize about 100 big statues of the Buddha and distribute all over across the country. So that has been one of his wonderful contributions. He's a very special monk in a sense that wherever he travels abroad, he never forgets his mentor, his guide, guru, and philosopher, the man who motivates him, Dr. Baba Saheb Ambedkar. So everywhere he goes, he carries the photo of Baba Saheb Ambedkar. If he go to Sweden or he's attending any international function, he will always have the statue of Baba Saheb Ambedkar in his hands. So that's his commitment to the mission of Baba Saheb Ambedkar. He's very young, and he's a very confident young Bhante that you can see, and I think he has a very definite role to play in the movement that we are all part of. With this brief introduction, I would like to request Venerable Bhante Prashil Ratna Gautam ji to kindly deliver his talk on a very important topic. In fact, the topic is international Buddhist community and the role of Buddhist monk, and he suggested that I put a community in the bracket, but then I thought that let's extend further and make it monk and community. So that's the topic of his discussion. It is a very warm welcome, Venerable, and now the floor is yours. Thank you, Mangesh ji Dahiwale.
first of all, I just want to pay a gratitude for you to give me this platform, and I pay my gratitude and I salute it to Lord Buddha and our most respectable Dr. Babasaheb Ambedkar. I called him a bodhisattva. So today is a very special day because it's a day of liberation. It's a day of I should say we should practice the compassion day. So it is a day, from my point of view, it's a day of compassion. Dhammacakka Pawatan Divas. So we should practice as a day of compassion, day of peace. So मैं हिंदी में ही इसको डिलीवर करूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग जो मुझे सुनते हैं और मैं भी, मेरी कंपैटिबिलिटी हिंदी में बहुत अच्छी है। चलेगा। तो सबसे पहले जो सुनने वाले हैं और जो धम्म को जानने वाले हैं, जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो मंगेश दहीवली जी के साथ में जुड़े हुए हैं, अंबेडकर जो कारवा के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के 65 ईयर्स के होने के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। भिक्खू के तरफ से, भिक्खू संघ के तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। और जो आज का जो टॉपिक है, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकल लीडर भी बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है और स्टेट वाइज लीडरशिप और नेशन वाइज लीडरशिप लेना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बट इंटरनेशनल लीडरशिप लेना और इंटरनेशनली काम करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। बहुत डिफिकल्ट जाता है। पर हमने कुछ संकल्प किया था और पहले से ही बाबा साहेब को पढ़े हैं, बचपन से ही बाबा साहेब के बारे में हमने सुना हुआ है और उन्हीं के प्रेरणा से भिक्षु बने, उन्हीं के प्रेरणा से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है। जैसा एक कोई कंपनी या फिर कोई इंसान अपना गोल सेट करता है, लाइक भगवान बुद्ध ने भी जब घर छोड़ा था तो उनके सामने कुछ एक गोल था, एक अचीवमेंट था कि मुझे इतने इतने साल तक के ये मुझे अचीव करने का है। अगर मैं अचीव नहीं कर सका फिर कोई मतलब का नहीं है। तो उसी तरह से जब हमने भी घर छोड़ा, घर गृहस्थी छोड़ी, तो दुनिया तो नहीं छोड़े, लोग कहते हैं दुनियादारी छोड़ दी, लेकिन रहना तो दुनिया में ही है, चाहे वो सन्यासी रहे या फिर गृहस्थ रहे। हमारा संकल्प था कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें और पहले से ही कुछ गुण निसर्ग ने या फिर द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा साहब थे और सभी लोग मुझे पहले से कहते थे कि आप बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और सभी लोग कहते थे। और मैं बचपन से भी अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया था कि मुझे यूरोप में सेटल होना है। इवन मैंने जो शादी भी करना था वो भी मैंने फ्रांस की लड़की के साथ में 9th और 10th में ही फिक्स कर लिया था मुझे क्या करने का है करके। तो उस तरह से मैंने अपना बिहेवियर पैटर्न भी सब चेंज कर लिया था, मेंटल पैटर्न भी चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करने का है। इसलिए फिर मैंने अपने स्टडी का भी जो ये सोचा था कि मुझे गोवा जाके स्टडी करना है क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेस है। हालांकि मैं नागपुर से हूँ, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस में रहने से अपना आपको एक अलग विजन और एक अलग डायमेंशन मिलता है आपको कुछ आगे सोचने का। तो थोड़ा कुछ जो इंग्लिश भी सीखा मैंने वो यूरोपियन लोगों से ही सीखा जब मैं गोवा में था और उनसे उनके साथ में काम करने का भी मुझे मौका मिला। तो एक वाइडर लेवल पे किस तरह से काम किया जाता है वो तब से मुझे पता है और जब 20 साल के अंदर का ही था तब से मैं उन लोगों के साथ में कनेक्टिविटी हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे एजुकेशन के लिए भी मैं फॉरेन से ही पैसा बुलाता था। मैं 20-21 साल का था तब से मेरे पास में फंड मेरे पास फॉरेन से ही आता है मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे कपड़े के लिए, इसके उसके लिए। तो मुझे काफ़ी पहले से ही सपोर्ट रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट ये सब को मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं देता हूँ या फिर उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता हूँ मैं। सो ह्यूमैनिटी इज मस्ट, क्योंकि हम सब लोग मानव है और मानव ही मानव का मानव के लिए काम में आता है। तो ये पहले से ही हमें पता है और हमें सिखाया भी जाता है। देन फिर हमने जो संकल्प किया था कि जब भिक्षु बने थे कि एक इंटरनेशनली काम करना है और दूसरे स्टेट में जाके काम करना है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बांधना है और कुछ तो भी अलग काम हमें करके बताना है ताकि सोसाइटी को कुछ एक मोटिवेशन मिले, सोसाइटी को कुछ एक पॉजिटिविटी मिले। और हम गोवा में गए तो गोवा में ही फिर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ से स्टार्ट होगी वाइडर लेवल पे। और उसके बाद में फिर काफ़ी सारे जो फॉरेन के लोग थे उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मुझे इनवाइट करना शुरू किया। उन्होंने भी क्या कि
फॉरेन के जो लोग रहते हैं वो बेवकूफ नहीं रहते, वो भी देखते हैं कि कौन इंसान क्या है, क्या कर सकता है, कि उसमें क्या पोटेंशियल है, उनको तो तुरंत पता चल जाता है। देन दे इनवाइटेड मी, एंड बाकी लोग सब लोग भेजते थे कि हमें बुलाओ हमें बुलाओ, पर उन लोगों को बुलाया नहीं जाता था। फिर मोस्टली ऐसा हो गया था कि बीच में कि इंडिया में अगर कोई इनविटेशन आता था तो कब बहुत बार, ऐसा हमेशा तो नहीं, पर फर्स्ट मैंने पहला प्रेफरेंस फिर वो मुझे देते थे, बड़ी बड़ी जो वहाँ के देशों की जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी उन उन लोगों का। तो ये सब ने जो वर्क किया था उसके बेस पर ही वो हमें इनवाइट वगैरह करते थे। और उसके बाद में फिर जब कोविड का जब कहाँ ये आया तो उस समय भी मैं बैठा नहीं रहा। लोगों को फाइनेंशियली है, लोगों को घर घर जाके उनको मेडिकल का कुछ हेल्प करना है, उनको उनको ग्रोसरीज देना है। और जो स्लम में जो लोग रहते हैं या फिर स्ट्रीट पे जो लोग रहते हैं उनको भी हेल्प करना मैंने स्टार्ट किया। मैंने पहले कुछ बजट रखा था 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। फिर लोगों ने एक्टिविटीज देखा तो फिर मुझे काफी सारा और भी मुझे हेल्प करना चालू किया। फिर इतना हेल्प किए कि वो लैक्स में गया, उसके बाद में इतना हेल्प हो गया कि फिर वो करोड़ में चले गया, यानी विद इन दिस 6 months ऑफ पीरियड। तो लोगों ने इतना मुझे हेल्प, और फॉरेन के भी लोगों ने बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन से बंदे जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब फॉरेन की भी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर मुझे हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, और इसी पेंडेमिक में ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीज रेस करके हमने काफी सारा मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशंस किया अलग अलग हॉस्पिटल्स में। नागपुर में भी जो बाहो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी काफी सारा मेडिकल इक्विपमेंट हमने दिया। और एक प्लानिंग ये भी चल रहा है कि उनके साथ या किसी और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ में मिलके एक अच्छा हॉस्पिटल्स भी हम अपने लोगों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाए। तो मेरा प्लानिंग तो ये है, सभी लोग अपनी कम्युनिटी का या फिर महाराष्ट्र लेवल का सोचते हैं, लेकिन मैंने कभी भी मेरे लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेता हूँ तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोग हॉस्पिटल अगर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो जो एशियन कंट्रीज के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मुंबई आते हैं या चेन्नई आते हैं, तो वो हमारे पास में नागपुर में आ सकते हैं। उससे हमारे जो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप रहेंगे वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं उन लोगों के साथ में। और काफी सारे जो बांग्लादेश है या नेपाल है या श्रीलंका है या अलग अलग जो कंट्रीज के जो लोग हैं, तो हमेशा मुझे मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए वो पूछते रहते हैं कि विच इज द बेटर वन इन इंडिया। तो मोस्टली मैं मुंबई ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आई लिव्ड इन मुंबई, सो आई नो मेनी हॉस्पिटल्स हो हियर। तो उनको मैं वो रिकमेंडेड करता हूँ। तो अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा कुछ हम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो शायद इन लोगों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी और कंपेटिबिलिटी और भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि एशिया में मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हमारे इंडिया में है, और उसमें नागपुर में हमारे सबसे ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद में फिर हमने इंटरनेशनल काफ़ी ट्रैवलिंग भी रहा, और ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज में हमने नेटवर्क भी ये किया है। और टोटल जो संगकाय फाउंडेशन का अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए उसको, इस सितंबर में। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है और इंटरनेशनली जो कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज में संगकाय फाउंडेशन का नेटवर्क हम लोगों ने बना दिया है। और उसमें सभी धर्मों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो चाहे फिर वो ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, या फिर वो किसी और संप्रदाय के हो, जैन हो, हिंदू हो, सब लोग को हमने जोड़ा हुआ है। और जो एक सोशल कॉज है, लाइक ह्यूमैनिटी, पीस, लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, इसके ऊपर जो बात करना चाहता है हमने उन लोगों को जोड़ा हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने गुजरात में किया है। और आप लोगों को पता है कि वो धारा के प्रवाह के विरुद्ध काम करना है, और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज नहीं थी, वो काफी बड़े लेवल पे एक्टिविटीज थी। और वहाँ कुछ करना मतलब मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप मुंह के फटाके बहुत फोड़ते, थोड़ा जाके आप वहाँ पे काम करके बताइए तो पता चलेगा। और वो भी मैं डायरेक्टली विधानसभा के सामने में ही प्रोग्राम्स लेता था, और मुझे काफी अच्छा सपोर्ट वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स लोगों का रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग अगर अब हमारे मन में लव, कंपैशन, पीस, ये सब भावनाएं अगर है, तो जो बुद्ध ने जो वैल्यूज दिए हैं, तो मुझे मुझे लगता है कि हर एक इंसान आपका दोस्त बन सकता है। और हर एक इंसान आपको जो ना बोलने वाला भी रहेगा तो शायद आपको हाँ बोल दे, क्योंकि बुद्धिस्ट वैल्यूज का इतना इंपॉर्टेंस रहता है। क्योंकि ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास में, उनके पास में नहीं है। और जब जब आप जाते हैं तो आप इंसान नहीं जाते, आप वैल्यूज को लेके जाते हैं। और जब आप जाते हैं तो आपके व्यवहार से, आपके बातचीत से, आपके अपीयरेंस से, आपके आई कांटेक्ट से आगे वाले को पता चल जाता है। और आगे वाला को तुरंत पता, ये भी पता चल जाता है कि जो मेरे पास में नहीं है वो
इनके पास में है। सो एनर्जी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, और इस माध्यम से काफी सारे लोग सपोर्ट में आते हैं। मुझे यही नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी मैं जाता हूँ, तो किसी को कुछ काम बताता हूँ, अगर वो नहीं कर पाते तो मैं खुद पर्सनली जाके वो काम मैं खुद कर लेता हूँ। तो इन्हें वो प्रेजेंस भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने ये जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, इसका किस तरह से हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उद्धार कर सके, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। मंगेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे समाज में काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर हम लोग लाइक माइंडेड लोग अगर बैठ जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी में है, जी जी उसको छोड़ के जी जो एक कॉमन एजेंडा है उसके ऊपर हम लोग काम करें। जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके ऊपर अगर हम लोग काम करें, और दूसरा कि हम लोग एक किस तरह से एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाए, उसके बिल्कुल ऊपर काम करें। तीसरा कि हम लोग एक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, बुद्धिस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, इसके ऊपर हम लोग काम करें। एक इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए, इसके हम बिल्कुल लोग पूरे एशिया पैसिफिक के जो गरीब बच्चे लोग हैं उनके बिल्कुल लिए हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल तरह से हमारी कनेक्टिविटी इन लोग के साथ में और बहुत अच्छे से टाई अप हो सकती है, और हम लोग सोशली, रिलीजियसली और पॉलिटिकली भी और बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक ये कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को या फिर इंटरनेशनल जो सोर्सेस है, अभी हमारे पास में, हमारे समाज के पास में बहुत लिमिटेड सोर्स है। अगर हमें हमारे समाज को कुछ करने का है या आगे बढ़ने का है या कुछ भी करने का रहा, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखता है। गवर्नमेंट को गाली मारेगा वो, लेकिन सबसे पहले वो सपोर्ट गवर्नमेंट का देखता है, क्योंकि माँ बाप के पास में उतना पैसा नहीं है। ठीक है, समाज के लोग भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो फिर वो समाज कल्याण के योजनाएं देखता है, पार्टी की योजनाएं देखता है, यही सब वो एक्सप्लोर करता है, या फिर दिल्ली के जो है उसको एक्सप्लोर करेगा वो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ये रिसोर्सेस को हम लोग और बढ़ाए, और बढ़ा के जो एशियन जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनके रिसोर्सेज भी हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में मिलके इसके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। और दूसरा एक मुझे हम भी लोगों में भी काफी चर्चा चलती है कि अभी हमने समाज की जो लीडरशिप है वो ऐसी लोगों के हाथ में ना देते हुए, अगर हम लोग कुछ जो एक्टिवली जो मंक्स लोग हैं अगर उनके पास देते हैं, तो एक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल का हम लोग ऐसा कुछ कि चलो अभी एक, जैसे मैं पिछले बार भी डॉक्टर से मिला था, तो डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि हम लोगों ने सोचा है, बोले कि मंक्स लोगों को आगे करें, इवन पॉलिटिकली भी, और मंक्स लोगों को ही हम लोग इलेक्ट करके उनको भेजे, विधानसभा रहे या पार्लियामेंट रहे या फिर हमारी नगर पालिका रहे। तो मुझे ये भी कुछ ने अच्छा लगा कि कि कुछ तो भी इनोवेटिव है, कुछ तो भी सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी है, लोग पॉजिटिव सोच है। रहे हैं, लोग सोच रहे हाँ, हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ, और दूसरा एक ये कि कहीं ना कहीं समाज एक नए दृष्टिकोण से सोच रहा है, और समाज में कुछ तो भी एक नई चीज आ रही है कि नहीं, इस एंगल से भी हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमेशा एक ही डायमेंशन रहता है काम करने का। हाँ, एक ही वे रहता है, बस उसी मार्ग पे हम लोग चलते हैं, हम लोग कोई नए तरीके सोचते नहीं है। लेकिन हमने अगर इस तरह के अगर प्रयोग अगर करके देखते हैं, आप मुझे बताइए कि मंगेश दहीवले अगर मिनिस्टर बन गया, कितने किलोमीटर तक के और कितने लोगों को पता चलेगा, बताइए मुझे, बोलिए। बंटी जी, मंगेश बिल्कुल दहीवले इसका अगर मिनिस्टर इसका बन, तो इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है बंटी जी, लेकिन आप ही बताइए। चलो हम बोलेंगे कुछ किलोमीटर तक के या कुछ लोगों को उसका इफेक्ट होगा, कोई एक भिक्षु बनेगा ना, तो पूरे वर्ल्ड न्यूज रहेंगी वो। ये बात सही, आपके आप सही है। पार्लियामेंट, जो फॉरेन के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, रॉयल फैमिलीज है, वहाँ के इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो कारपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम एशिया को जो कंट्रोल करते हैं वो बुद्धिस्ट लोग ही है, तो उनके साथ में आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मंगेश दहीवाले को नहीं, मंगेश दहीवाले उनके लिए नोन नहीं है, लेकिन एक मंक्स जो नाम आता है, बुद्धिस्ट मंक्स, इट्स बहुत इनफ, बहुत है। इट्स क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड बिल्कुल। व्हाट इज द सिनारियो। हम्म। और बाकी का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोगों ने भी अगर इस तरह से अगर कुछ करते हैं, कुछ इनोवेटिव कुछ ये करते हैं, जैसे एक भिक्षु को हम लोग इस तरह का अगर हम डलवा के देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे काफी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मंक्स वो लाएगा तो अपने लोगों को देगा, अपने लोगों को रोजगार देगा। ठीक है,
उसके बाद में उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी लोगों को पता चल जाएंगी। उसके बाद बुद्धिज्म का जो ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ेगा, और लोग बुद्धिज्म के बारे में सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर वो जो सोचते हैं वो भी तरीका भी लोगों का बदल सकता है कि इस वजह से भी, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, ठीक है, तो उनके रिसोर्सेस कम है लेकिन हम बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है। तो इसको हम लोग किस तरह से एक मेन स्ट्रीम में हम लोग ला सकते हैं, और किस तरह से एक नई आइडियाज के साथ में अगर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये कुछ तो भी नया काम होगा, क्योंकि वैसे भी भिक्षु जो रहता है वो 24/7 सोसाइटी के लिए ही रहता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, चाहे वो किसी धर्म के रहे, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उतने कैपेबल नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो आईआईएम से पास आउट है, आईआईटी से पास आउट है, कोई लंदन से पढ़ के आया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया है, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली बुद्धिस्ट। तो उन लोग इतने कैपेबल है लेकिन फिर भी वो यानी एक स्थान पे बैठे हुए, तो अगर ऐसे लोगों को अगर हम लोग मेन स्ट्रीम में अगर लाते हैं, तो कुछ तो भी नया सिनारियो या फिर नई एक चीज सोसाइटी को हम लोग दे सकते हैं, जो इतने यानी पढ़ के आए हुए, फॉरेन से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन रिलीजियस इम्पैक्ट की वजह से वो मंदिर में बैठे हुए या कहीं भी बैठे होंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अगर मेन स्ट्रीम में हम लोग ला लेते हैं, तो कुछ तो भी नया एक लोगों को सोचने का और एक नया काम करने का तरीका भी लोगों को मिल सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे कि जो यूरोप से है, लंदन से है, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, हम लोगों को जाने को भी मुश्किल होता है, वो वेल सेटल फैमिली से वो पढ़ के आते हैं और वो मंदिर में वो सेवा देते हैं। तो ऐसी लोगों की भी हम लोग जो इंटेलेक्चुअलिटी है, अगर हम लोग को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो वो काफी यूजफुल हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। अभी रिसेंटली हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं, यानी मैं चला रहा हूँ उसको, कि बिल्डिंग नेशंस टुगेदर। बिल्डिंग नेशंस टुगेदर में वो प्रचल बनती ही नहीं तो बुद्धिस्ट लोग ही नहीं, तो एंटायर कम्युनिटी वो किस तरह से नेशन को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि भारत रहेगा, देश रहेगा, तभी हमारा धर्म रहेगा। देश ही नहीं तो धर्म कहाँ से रहेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहले देश और देश का विकास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और मुझे लगता है कि देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जो भी फंड आता है, तो मैक्सिमम जापान, कोरिया, ये सब जो कंट्रीज है, ये बहुत बड़े लेवल पे हमें हेल्प करते हैं। इवन जो मुंबई और गुजरात को जो कनेक्ट करता है मेट्रो का प्रोजेक्ट, वो भी जायका फंडिंग है, फ्रॉम जापान। जो मुंबई का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है इतना बड़ा, वो भी फ्रॉम जापान ओनली। तो ऐसी सब जो कंट्रीज के जो लोग हैं, तो इन लोग के साथ में हमारी कनेक्टिविटी का अगर कोई सोर्स अगर हम लोग बना पाए अच्छे से, तो इट विल बी मीन्स इट विल बी अ वंडर। और उसके लिए एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स मुझे लगता है कि बहुत कैपेबल हो सकता है। बिल्कुल। मुझे मंगेश, मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि 1956 से आपने कितने स्पिरिचुअल लीडर बनाए, मुझे बताइए। बात सही है, कुछ नहीं। मैं भी 15 साल से मैं देख रहा हूँ, श्री श्री रविशंकर आए हैं, रामदेव बाबा आए हैं, सदगुरु आए हैं, कितना बिल्कुल बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने, यानी वो इतने कैपेबल है कि चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप बिल्कुल इतनी बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, आपका एक भिक्षु बताइए उस लेवल का। बिल्कुल सही तो बात। ये, हाँ, एक बहुत बड़ा एक गैप है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, तो इसको भी हमने वो तैयार करना चाहिए कि बिल्कुल। हमारे कुछ भिक्षु इस तरह से बने कि वो गवर्नमेंट के साथ में डील करे, वो जी जी। कारपोरेट हाउस के साथ में वो डील करे, और हमारे भिक्षु लोग वो कारपोरेट हाउस में जाके सिखाए। हम्म। हमारे एक भी भिक्षु नहीं है इस लेवल के कि बिल्कुल। वो, हाँ, उन लोगों को जाके पढ़ाए। आप देखो सदगुरु के लोग जाते हैं, श्री हम्म। श्री रविशंकर जी के लोग जाते हैं, एस एन गोयनका के लोग जाते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो जो बिल्कुल इन्फेरिटी, जो कॉम्प्लेक्स जो समाज में पड़ा हुआ है ना, तो उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो हम जाएगा। तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, वो हम्म, वैसा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, जब तक कि आप ये जो सिस्टम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप अपने आप को अगर टॉप पे नहीं समझेंगे, तब तक कि आप इनको नीचे नहीं सोच सकते। बिल्कुल आप बिल्कुल। हमेशा अपने आप को इधर सोचते हैं। हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आके सोचना पड़ेगा कि वी आर बुद्धिस्ट, तो वी आर द टॉप वन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इस, अगर ये जो एटीट्यूड है, आपका मेंटल एटीट्यूड है, तो आप कुछ तो भी नया हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको वही स्लेव बन के हमें रहना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से अगर हम लोग कुछ करते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोग साथ में लेके हम्म, पॉलिटिकल सिनारियो भी बहुत सारा चेंज हो सकता है, और बहुत बिल्कुल सारी चीजें समाज की चेंज हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा है कि जो हमारे बच्चे लोग अभी जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम मैंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर को मैंने बोला था, तो बोला क्या तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते रहते हो, उससे अच्छा आप हम्म, उनको कोरियन पढ़ाइए, जापानीज पढ़ाइए, चाइनीज पढ़ाइए। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि 30-35% जो एम्प्लॉयमेंट है अपने समाज का, वैसे ही चले जाएगा। बिल्कुल
कोरिया में जॉब्स है, जापान में जॉब्स है, चाइना में जॉब है, सिर्फ आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, उसलिए आपको वहाँ पे वो इंट नहीं है। एंटरटेन नहीं करते हैं। मेरे पहचान के कुछ लोग हैं कि जो बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं कि उनको चाइनीज आती होंगी तो मेरे तरफ भेजो, मैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह के अगर हम अपने बच्चे लोगों को ये फालतू चीजें पढ़ाने से अच्छा है हम उनको कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस अगर पढ़ाते हैं। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश और थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स मैं यूज कर रहा हूँ अभी के इसमें। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने पढ़ा हुआ है उसका मेरे लिए अभी कोई उपयोग नहीं है। नहीं है। पता नहीं आप लोग क्या उसका यूटिलाइज करते हैं नहीं करते हैं। तो मराठी और हिंदी तो वैसे भी आ जाती है, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। लेकिन मोस्टली अगर अगर हम लोग चाइनीज और बाकी चीजों बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। आज बिल्कुल। मॉर्निंग में मैंने एक जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी थी उनके लिए मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया। हम्म, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ 2016 से तो मैं यही बोलता हूँ वहाँ के लोगों को कि आप एक अंबेडकर भवन आप लोग स्टैब्लिशमेंट करो या फिर आप मेडिटेशन सेंटर्स आप स्टैब्लिशमेंट करो। आपको पता है कि मंगेश नहीं। कि आपके सेंटर्स उन्हें क्या पुणे में एक पार्टी लगती है कि आमची शाखा कुटच नहीं है। उस तरह बराबर। के हाँ उस तरह के हमारी बात है कि नहीं हम्म। हम हमारे इधर ही है। मुझे लास्ट बस। टाइम किसी ने पूछा था, बोले अगर आपको दीक्षा भूमि के बोर्ड पे डालेंगे तो आप क्या करेंगे। तो बोला हम्म, मोस्ट प्रोबेबली अगर बोला मैं रहता तो एक दीक्षा भूमि शायद पेरिस में रहती, बोला एक दीक्षा भूमि शायद अमेरिका में रहती बोला, सही और एक बात। दीक्षा भूमि शायद बैंकॉक में एगरे रहती बोला। तो इस लेवल पे आप क्यों नहीं सोचते, थोड़ा वाइडर लेवल पे क्यों नहीं सोचते आप लोग। हाँ, थोड़ा सा अगर बड़े लेवल पे सोचते तो वहां के लोग आपको कनेक्ट हो जाएंगे ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमें सोचने का है उन लोगों के साथ में कनेक्शन करने के लिए। दूसरा बराबर। फिर मेरा वो भी प्लानिंग चल रहा है कि एक यूरोप में मैं काफी सालों से जा रहा हूँ, खास करके पेरिस में। और वहाँ इमिग्रेशन के ऊपर मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। तो हम्म, इमिग्रेशन का एक ऐसा है मंगेश कि हम्म, हम काफी सारे लोगों को वहाँ सेटल डाउन कर सकते हैं। सही है, सही है। हाँ, तो उससे बहुत है। भी हाँ उसमें हमारी एक कम्युनिटी वाइज एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। हम्म, और मुझे जो थ्रेट लग रहा है जो बाबा साहेब के विचारों को हम्म, और बुद्ध के विचारों को कि वो यहाँ से वो खत्म कर सकते हैं, हम्म, बाकी दूसरे कंट्री से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही करना है कि दूसरे कंट्रीज में जाके इंस्टीट्यूशंस ओपन करना है और वहाँ के लोगों को जोड़ने का है। बिल्कुल, ये जो अंबेडकर और बाबा साहेब के जो विचार है उनको, क्योंकि वो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, बाहर में खत्म नहीं कर सकते हैं। बाहर बिल्कुल। के लोग काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं और ये एग्जाम्पल भी है। इसके पहले भी बुद्धिज्म यहाँ से खत्म किया गया था लेकिन बाहर में वो प्रिजर्व रहा है वो। बराबर बाद में है। हम उसको लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल। ये हिस्ट्री बताती है हमें। तो हमें इस बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा मैं 2016 से मेरा प्लानिंग था कि अमेरिका में एक अम्बेडकर भवन उधर बनाने का। तो मैं 3 बार गया यूएस में, फिर वहाँ प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैंने देखा हुआ है। लेकिन वो हम्म, काफी मेरे आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब काफी महंगी जाती है। तो उसके लिए भी मैं बाद में फंड रेस करने वाला हूँ उसके लिए। तो उसी तरह से मेरा तो ये प्लानिंग था कि मुंबई छोड़े तो पेरिस में एक अम्बेडकर भवन रहे, अमेरिका में एक रहे, फिर चक्कर मारते फिर ताइवान में एक रहे, बैंकॉक में एक बिल्कुल, रहे, फिर बिल्कुल, रिटर्न बैक। बिल्कुल। तो पृथ्वी का अगर एक चक्कर काटते तो सब तरफ रहे। पर ये सब मेरे से नहीं होगा, आइडियाज मैं दे सकता हूँ, मैन पावर मैं दे सकता हूँ। पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी जो लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें हमारे साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो अम्बेडकर भवन या फिर जो हमारे जो इंडियन बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, तो ये बाकी लोगों को वहाँ के लोकलाइज लोगों को हमें वो कनेक्ट कर कराएंगे। सकते। हाँ, बिल्कुल। अभी आपको पता नहीं होगा कि अमेरिका में हमारा बुद्धिस्ट नहीं है, और बुद्धिस्ट थाई टेम्पल बाकी अलग अलग कंट्रीज के टेम्पल्स बहुत है। थाई हम्म, लोगों के 100 हो गए मेरे ख्याल से, जो कंबोडिया है या फिर लाओस है या वियतनाम है, जो हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गरीब है, उन हम्म, लोगों के टेम्पल्स है वहाँ पे काफी सारे। पर हाँ, हमारा एक भी टेम्पल नहीं है अमेरिका जैसी सिटी में, जहाँ गोयंका की जी के टेम्पल्स है पर अम्बेडकराइट लोगों का एक भी टेम्पल नहीं है। तो दिस इज हाँ, योर कंट्रीब्यूशन, यानी हमारे समाज का ये कंट्रीब्यूशन रहा है। और सब आईआईटी आईआईएम से वो पास आउट होके गए, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो करते क्या है, मतलब मैंने मुझे कुछ समझ में नहीं आता है उन लोगों का। तो ये हमारे लिए ये असेट्स है कि ये यूजलेस लोग है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें क्या है कि कॉन्क्रीट काम हमें सोसाइटी के लिए करने का है। और कॉन्क्रीट काम में मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज हम लोग नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला या फिर जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उन्होंने करके गए, उसलिए हम लोगों को बताते हैं अभी। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट ऐसी क्या सिचुएशन है हमारे पास में, तो इसके ऊपर भी हमने सोचना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए इसके ऊपर। और मैंने आज ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात रखा
कि आप अंबेडकर भवन का या फिर एक बुद्धिस्ट सेंटर्स का आप लोग न्यू रखो। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद जैन एफएम में जाऊंगा अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा एक ड्राइविंग फोर्स और मोटिवेशन हमेशा लगता है। ये लोगों को ना, अपने लोगों को ना बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, उनके पीछे लगना ही पड़ता है, एक ड्राइविंग फोर्स लगा के रखना पड़ता है, करना है करना है करना है, तब कहीं जाके फिर वो करते रहते हैं। तो ये ड्राइविंग फोर्स इतना लगाना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनकी अपनी अलग ये भी कहानी भी है कि उनको घर-दार भी सँभालना पड़ता है। ये तो हमारे पास तो कोई बीवी बच्चे नहीं है। काम ही है मोटिवेशंस करने का लोगों को। तो अगर अगर ऐसे कुछ बनते हैं तो वो समाज में एक हैप्पीनेस आता है कि अरे! हमारा वहाँ पे भी है करके, हमारे लोग वहाँ पे हैं। वो चाहे उसको कुछ हेल्प ना करे, लेकिन एक एक आनंद रहता है कि अपना है करके, है ना? अच्छा लगता है। जैसे मैं लोगों को ने बाबा साहब का फ़ोटो, रमाई का फ़ोटो जब मैं टाइम स्क्वायर पे लेके खड़ा था, तो कितने लोगों ने शेयर किया था। तो इट इज़ हैप्पीनेस ना। लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, लोगों को हैप्पीनेस मिलता है और हमें हैप्पीनेस ही देने का है, हमें हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने का है। बाबा साहब ने भी वही किया कि लोगों को किस तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े करके। लेकिन बिल्कुल, प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे पास में 2 विंग्स है, वी हैव अ 2 विंग्स, लाइक एक है बाबा साहब का और एक है बुद्ध का। तो हमने कितना ऊपर फ्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, लेकिन हम लोग अभी प्रॉपर्ली दौड़ना भी चालू नहीं किए हुए हैं। सही। हमारे क्या है कि थोड़ा-सा ईगल आइज़ से और ईगल व्यू से हमें थोड़ा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये संकुचित मानसिकता है ना, इसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक अलग ही मानसिकता समाज ने बना के रखा हुआ है, कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसको हमने लेग पुलिंग करना चाहिए, चाहे हुँ, कोई भिक्षु रहे या वो क्या है कि इस्लाम में एक कहावत है मुझे बहुत अच्छी लगती है, हुँ, कि जो मक्खी रहती है ना मक्खी, हुँ। वो सारे शरीर को छोड़ के जख्म पे जाके बैठती है, यू नो? अच्छा, हाँ, हाँ। तो उसी तरह से हमारा ये मेंटल एटीट्यूड है कि मंगेश 100 अच्छे काम करे, उसने एक गलत काम किया ना तो मैं वो देखूँगा, अच्छा ऐसा किया क्या इसने? फिर हुँ, उस हुँ, लाइन को और लंबी करूँगा मैं। हुँ, हाँ, लेकिन मैं जो आई एम अ बुद्धिस्ट, हाँ, आई एम नॉट अ शूद्रास, ठीक है? तो मैं शूद्र की तरह बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, अनटचेबल्स की तरह बिल्कुल नहीं सोचता। मैं अपने आप को सुपीरियर मानता हूँ। तो मेरी जो सोचने का तरीका है, मेरा जो काम करने का भी तरीका है, वो थोड़ा-सा अलग है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। इसलिए मैं इतने 10 सालों में इतना कुछ कर पाया, क्योंकि आई एम अ बुद्धिस्ट, मैं हुँ, बता रहा हूँ मैं। इफ सही। यू आर अ बुद्धिस्ट तो आपने कुछ तो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना चाहिए। बाबा साहेब ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए, बुद्ध ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए, सम्राट अशोक ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी करना चाहिए। तो ये जो है ना, तो ये जो मानसिकता है कि अ अ, हर समय बुराई देखना, किसी की भी बुराई देखना, तो उसमें से हमें निकलना चाहिए। और ये जो संस्कार है ना, ये शूद्रस के संस्कार है, ये हुँ, अनटचेबल्स के संस्कार है, ठीक है हुँ, ना? बुद्धिस्ट लोगों के संस्कार नहीं है। अगर आपके भाई को कुछ मिलता है, आपके नेबर्स को कुछ मिलता है, तो आप लोग दुखी होते हैं, हुँ, ये शूद्रस के संस्कार है। हुँ, हुँ, ठीक है ना? आपने खुश होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड मुदिता, जो हुँ, 4 ब्रह्म विहार बताया है हुँ, उसमें। हुँ, हुँ, आप अगर किसी समाज के ऊपर या इसके आपके नेबर्स के ऊपर कुछ बुरा होता है, आपको खुशी होती है, यानी मीन्स आप किस तरह के मेंटालिटी के लोग हैं। हुँ, लोगों को दुःख हो रहा है और आपको सुख हो रहा है, तो सही आपको बात। कहीं न कहीं कंपैशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि लोगों के दुःख में भी हमें थोड़ा-सा सहभाग हमें देना है। हमें हुँ, मैत्री करना, ये हमें करना पड़ेगा। कोई हमारे साथ में कुछ गलत करता है अपने समाज के लोग, हमें हुँ, उपेक्षा भावना को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि हमें छोटा है, हमें हुँ, छोटा समझ के उसको माफ़ माफ़ कर कर देने का है। तो ये जो 4 ब्रह्म विहारस की अगर हमारा समाज अगर प्रैक्टिस करेगा ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके जैसा समाज फिर हुँ, पूरे विश्व में नहीं रहेगा। बिल्कुल। क्या क्या प्रैक्टिस करने का है? तो 4 ब्रह्म विहार प्रैक्टिस करने का है। आप हुँ, वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो बाबा साहब को बहुत मानते ना, बहुत हुँ, मानते, तुम लोग अपने आप को मार भी सकते। बाबा हुँ, साहब की एक ही बात मानो। बाबा हुँ, साहब क्या बोलते हैं कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा रखूँगा, सिर्फ़ उसको प्रैक्टिस करो। आज का दिन भी ना, मैं तो बोलता हूँ मंगेश, आज का दिन भी ना लोगों ने कंपैशन डे के नाम से मनाना चाहिए। लेट्स बिल्कुल, प्रैक्टिस कंपैशन। बिल्कुल, हाँ, जो नहीं करना है ना मंगेश, उसके लिए दिमाग नहीं लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, पर जो करना है ना, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है। बिल्कुल, आप बोलो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, हाँ ठीक है, नहीं करना है तो हम घर पे जाके सो जाएँगे। अब मैं बिल बोलूँगा आपको ये करना है, तो हुँ, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है। और जो बिल्कुल, करुणा का जो काम है, जो कंपैशन का काम है, हुँ, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर हम लोग कुछ काम करते हैं, तो एक नई सोसाइटी हम लोग बना निर्माण सकते हैं, बिल्कुल है ना? सही, बिल्कुल। हुँ, और दूसरा एक पॉइंट मेरा ये भी था हुँ, कि एजुकेशंस को लेके, हुँ, तो एजुकेशंस को लेके हम लोग जो अलग-अलग जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, हुँ, उसके जो यूनिवर्सिटीज़ है या फिर मंक्स की जो फंडिंग्स अगर चलती है, तो उसके लिए हमें किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जाए, वो हुँ, भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। और उनका जो सोर्सेस है,
वो हमारे लिए किस तरह से यूटिलाइज हो सकता है कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर भी हमने सोचना चाहिए। दूसरा एक ये हम्म, कि मंक्स लोगों का जो है, मंक्स लोगों के लिए अभी कुछ भिक्षु लोग होते हैं, तो जो बड़े भिक्षु लोग हैं वो छोटे भिक्षु की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या बड़े भिक्षु भी, जो बड़े भिक्षु है जिनका नाम काफी रिनाउंड है, आप उनको बोलो किसी छोटे भिक्षु की तबीयत खराब हुई, आप उनको हेल्प करो, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। हम्म, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सब हम्म, रहेगा उनके पास में, लेकिन हम्म, वो नहीं करते हैं ऐसा। तो हमें ये भिक्षु जब तबीयत खराब हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो उनके बिल्कुल। लिए भी एक कारपोस फंड हम लोग ये रखे, ताकि ऐसी समय फिर हम उनको हेल्प कर सके। जैसे अभी एक एक भिक्षु जो है उनका मैं टेक केयर कर रहा हूँ मैं। हम्म, तो और दूसरा एक ये था हम्म, कि जब नेशनल कैलेमिटीज आ जाती है, तो हमारे जो लोग हैं वो घर में घुस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब नेशनल कैलेमिटीज अगर आती है, तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने घर के बाहर निकलना चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए। अगर बिल्कुल। वो नहीं कर सकते तो उसके लिए भी हमने एक कुछ फंड उसके लिए रिजर्व करना चाहिए। और जब भी कभी भी किसी के ऊपर भी आती है, अभी जैसा महाड़ में और चिपलून में आया था, तो मैं पर्सनली उसको विजिट किया था उनको। तो हम्म, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे कम्युनिटी को, आपको हम्म, पता नहीं होगा, लेकिन जब उनके ऊपर आपदा विपदा आई, तो हम्म, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटीज वहाँ भाग के गई, बाकी फिर अलग अलग हिंदू संगठन, फिर उसके बाद में सिख कम्युनिटी के लोग थे वो भाग के गए। उसके जी, बाद में कहीं जाके फिर हमारे कुछ लोग, बहुत वो भी परसेंटेज बहुत कम था, वो हम्म, गए थे। तो इसके लिए भी हमने सोसाइटी ने सोचना चाहिए इसके बारे में, हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। हम्म, और दूसरा एक है कि अभी हम लोग फिफ्थ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मेरा काफी मीटिंग्स अगर उसका चल रहा है, हम्म, तो उसमें इंटेंशन ये है मंगेश, कि हम्म, जो माइनॉरिटीज है उनको हम हम्म, लोग साथ में जोड़े, और वो जुड़ भी गई है। बिल्कुल। और मिलके हम लोग माइनॉरिटीज को किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग मिलके संविधान बचा सकते हैं, ये जो सही है। मेजोरिटी जो लोग हैं। तो वो एक इंटेंशन है हमारा। और किस तरह से लव, कंपैशन, और धर्म के नाम पे जो आपदा विपदाई जो आती है, या फिर जो राइट्स होते हैं, वो ना हो। और धर्म, क्योंकि हमें विभाजन करना, धर्म हमें झगड़े करना, धर्म हमें कॉन्फ्लिक्ट करना, ये सब चीजें नहीं सिखाता, और जो सिखाता है वो धर्म ही नहीं है ना। धर्म हमें ये सिखाता है कि किस तरह से प्यार से, मोहब्बत से, और किस तरह से देश के विकास के लिए काम किया जाए, यही हमें धर्म सिखाता है। तो इन सब लोगों को जोड़ के एक कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10 से 15 के दिसंबर के बीच में, बाबा साहेब के 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में, या फिर बाबा साहेब का जो जो महापरिनिर्वाण जो दिन है, मृत्यु का जो दिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। उसमें माइनॉरिटीज का पूरा अच्छा सपोर्ट्स भी वो हमें देने के लिए रेडी हो गए हैं। बहुत ही तो इसके बढ़िया। भी हम लोग काफी अलग अलग बाद में इसके यानी कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर बाद में इसके हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके रिसोर्सेज भी हम लोग बाद में हम्म, यूटिलाइज कर कर सकते। सकते हैं। सही है। क्योंकि दे आर वेरी गुड इन द मेडिकल सर्विस, दे आर वेरी गुड इन द स्कूलिंग्स और एजुकेशन सर्विसेज में है, दे आर वेरी गुड इन द बिजनेस है। तो बाद में हम लोग कोलैबोरेटली हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा काम इन लोग के साथ में कर सकते हैं। तो ये भी एक बिहाइंड द कॉन्फ्रेंस ये हमारा एक मोटो है। और दूसरा कि हम लोग कोशिश करना चाहिए कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये मोस्टली टूरिज्म एंड बुद्धिज्म हम्म, ऑलमोस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जी, इसमें ऑन बोर्ड हम लोग किस तरह से जाए, और हम लोग किस तरह से हमारा जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको प्रमोट करें, या फिर हमारा जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। हम्म, और उनके साथ में मिलके हम लोग टूरिज्म जो बुद्धिस्ट साइट्स है उसको प्रिजर्वेशन के साथ साथ उसको प्रमोट भी करें। इसके लिए भी हमें हमारे समाज ने हम्म, सोचना चाहिए। राइट। बिल्कुल। हम्म। तो मैं अपना टॉक यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न हो गए या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी बंते जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने रखी है आज लोगों के सामने, कि किस प्रकार ये हमारी जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, और कैसे जो बौद्ध जगत है वो किस प्रकार यहाँ के बौद्धों के साथ जुड़ के काम कर सकता है। आपका जो विजन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यापीठ, विश्वविद्यापीठ हो, विद्यालय हो, एक बड़ा दवाखाना हो, हॉस्पिटल हो, और ये जो बहुत सारी जो प्रेरणादायी बातें आपने सामने रखी है, इंटरनेशनल स्कूल हो, बुद्धिस्ट स्कूल, तो ये काफ़ी चीज़ें। और हम देख रहे हैं कि आप सही मायने में जो है इस सारी दिशाओं में कार्यरत है, और बहुत बड़ा जो है योगदान आपका ये बौद्ध आंदोलन में
आगे चल के रहने वाला है। एक तो जैसे अपन हमारे बौद्ध जगत में देखते हैं तो यंग बनते जो है वो काफी रेयर साइट होती है, बहुत कम दिखते हैं अपने को यंग बनते। लेकिन आप में एक जिसको बोलेंगे एक तरुण भिक्षु नजर आता है कि जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है, और जो समस्याएं है उनको उलझाने की राहत जो है उसमें दिखती है। तो एक बहुत ही मतलब हम ऐसा कहेंगे कि आपका जो कार्य है बड़ा सराहनीय है, और हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपके साथ है, कारवां आगे बढ़ते रहेगा। और इसी के साथ जो है बंटी जी, हम विदाई लेंगे आपसे। उसके पहले अगर आपको कुछ और कहना है तो प्लीज शेयर करिए बंटी जी। जी, जैसा कि आप मैंने बताया था कि हमें जो बुद्धिस्ट मूवमेंट है उसको तो हमें आगे लेके जाने का है, और हम्म, साथ ही साथ जैसे जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, तो बुद्ध विहार हम लोग बोलते हैं, तो उसको बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर्स में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, मेडिटेशन सेंटर्स में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मैक्सिमम जो हिंदू लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनको अगर जोड़ना है, तो आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन के थ्रू ही उनको आप जोड़ सकते हैं, और वो बहुत बड़ा टूल्स है। पर कुछ महामानव समाज के हैं जो उसको यानी बदनाम करते हैं, मेडिटेशन की जरूरत नहीं। मैं अक्रॉस द वर्ल्ड घुमा हूँ, दीक्षा भूमि की शाखा कहीं नहीं है, पर गोयंका गुरु जी के मेडिटेशन की शाखाएं बहुत सारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम्म, वो बुद्धिज्म को भी जो जानते हैं थ्रू द मेडिटेशन ही वो जानते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं मेडिटेशन सेंटर्स के ऊपर अगर, तो एक एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होता है, और हम्म, दूसरा मेडिटेशन थ्रू आप बुद्धिज्म जो है वो बहुत अंदर तक के पेनिट्रेट आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे हिंदू लोगों को जानता हूँ जो मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर है और बहुत अच्छे बुद्धिस्ट है, एज कम्पेयर टू ये अम्बेडकराइट का जो बोलते हैं ना, उससे वो पूरा नत्थी में शरणं अय्यम वाला काम है उनका। हर एक चीज उनका पूरा बुद्धिस्ट वे से वो करना पसंद करते हैं। वो दे आर मिलियनर्स बिलियनर्स, वो यानी इतने सुप्रीम है वो। लेकिन सब यानी गोयंका जी के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी कुछ इस तरह से कुछ अगर हम लोग बनाते हैं तो ये लोगों के लिए काफी आइडियलिस्टिक होगा। तो मुझे लगता है कि हमने जो फॉर्मूला कुछ यूज करना चाहिए ना, थोड़ा चलो हम लोगों ने एक फॉर्मूला या फिर टिबेटियन फॉर्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम्म, या फिर हमारा जो 2000 साल पुराना जो फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करके देखते हैं। सम्राट अशोक के काल का कुछ फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो फॉर्मूला है, या फिर कुछ नया एडॉप्शन हम लोग बैंकॉक का जो कल्चर है वो एडॉप्ट करके देख, तो कुछ ना कुछ ऐसा नया होना चाहिए। नहीं तो आपका मैं बता रहा हूँ, आपका जो बुद्धिज्म का झाड़ है ना बहुत बड़ा है, लेकिन हम्म, ऐसा रूखा सूखा है, कुछ ऐसा कलर नहीं है उसमें। मेरे जैसा अगर कोई यूथ रहेगा तो व्हाई शुड आई कम, क्या है हम्म, तुम्हारे पास में? हम्म, वही फिलोसफी, वही यानी घसी पिटी वंदना बैठ के करो। बुढ़े लोग रहते हैं वो फालतू में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इनोवेटिव कुछ भी नहीं है, समझ गए ना आप? मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं। जैसे आप तिब्बतियन टेम्पल में जाओ, वाओ, वो वर्ड निकलता है वाओ, वो फोटोज लेंगे बैठेंगे ये, वो हम्म, स्टार्ट हो जाता है, वो इंसान लिंकअप हो जाता है। और जो हम्म, ना एक जो देखने से जो लिंकअप होता है ना, वो चीजें हमें करने का है। अगर आपको अच्छा कर, तो विहार देखने से ऐसा रुका सुका और अजीब सा फील होता है उसको देखने से। ये हम्म, लोगों के घर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे विहार एकदम डिस्ट्रक्टिव इसमें है। तो हमें कुछ ना कुछ नई चीजें अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि वी लॉस्ट आवर कल्चर एंड हम्म, कल्चरलेस वल्चर। बिल्कुल। बहुत हम्म। एकदम बनते बनतेजी, मी थोडं याच्यावरती थोडं एक बोलू काय? आपलं हे आपले मी विचार ऐकले आणि मनीष जी पण आहेत आपल्या याच्यामध्ये. हम्म। नाही, आपण एकदम निराश व्हायला नाही पाहिजे. कारण आपला जर बौद्धांचा आता म्हणा आपण कन्व्हर्टेड बुद्धिस्ट आहोत, अजून ते कन्व्हर्टेड बुद्धिझम लोकांमध्ये आलं नाही अजून. आणि जी आपली सुशिक्षित संस्कृती आहे, ही एक थोडी डायव्हर्जन मध्ये आहे. त्यांना अजूनही कळायला नाही लागले की आपण काय करायला पाहिजे. तर सुशिक्षित लोकांचा या ठिकाणी आणि मोठ्या मोठ्या वरच्या पदावरती जे लोक आहेत, जे IAS IPS आहे किंवा वेल क्वालिफाईड कम्युनिटी आहे, यांचं एखादी आपण असं महाअधिवेशन घेऊन त्याच्यामध्ये जर विचार विनिमय केला तर मला असं वाटतं की काहीतरी मार्ग निघू शकते. आणि आपले जे विचार आहेत की चांगली एक बुद्धिझम युनिव्हर्सिटी उभी राहायला पाहिजे, बरोबर आहे ते. एखादी चांगलं मोठं मेडिकल कॉलेज आपल्या कम्युनिटीचे एक असायला पाहिजे, हे फार चांगलं आहे.
परंतु इथे काय झालं, जे आपलं आता आंदोलन जे उभं होत आहे, जे प्रकाश आंबेडकर म्हणा किंवा आपले राजनेते तयार करत आहे, त्याला राजनीतीकरणाचं नाव देऊन हे लोक तोडण्याचाच प्रयत्न करत आहे. हा पण एक इतिहास आपल्याला लक्षात घ्यावंच लागेल. नाईक साहेब, खूप आणि हा सर, खूप खूप धन्यवाद. एकदम तुम्ही एकदम चांगले पॉइंट मांडले आमच्या समोर. आपण कधी ह्या विषयावर चर्चा करू. आता भंतेंना आपण साधुवाद करून आजचा कार्यक्रम आपण इथे संपवूया. पण खूप खूप धन्यवाद नाईक साहेब. खूप सुंदर प्रश्न तुम्ही निर्माण केले आहेत. खूप खूप धन्यवाद नाईक साहेब. धन्यवाद धन्यवाद सर. Yes. So I would like to formally say thank you to Venerable Bhante. Bhante, खूब बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने आज के दिन, जब आप इतने व्यस्त थे, तो एक कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और एक युवकों के लिए किस प्रकार आप प्रेरणादायी काम कर सकते हैं, एक होपफुल लाइफ कि अगर हम बुद्ध के, बाबा साहब के मार्ग पे चलते हैं तो सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते दुनिया की. ये बड़ा मूल मंत्र आपने दिया है कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन अचीव. और हमारे पास 2 पर लगे हुए हैं, बाबा साहब के और बुद्ध के, तो हम क्यों नहीं उड़े, हम क्यों एक जगह पे बैठे. तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपने आज दिया है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आकाश में जो ऊंची जो छलांग है हमारे लोग लगाएंगे और बाबा साहब का कारवा, बुद्ध का मिशन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, यही आशा रखते हुए और आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए हम यही विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी. हम आपको फिर बुलाएंगे. ठीक है मंगेश, और एक काम था कि अपना जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी जो जुड़ना चाहती है कॉन्फ्रेंस में, सो दे आर मोस्ट वेलकम. वेरी गुड. क्योंकि कुछ आगड़ा वेगड़ा जो बोलते हैं ना अपन, उस तरह का कुछ करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस में. बिल्कुल बनते वेरी गुड बनते हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मिलेंगे अपन बाद में. संजय नायक साहब, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yes sir, thanks a lot and have a wonderful day to you. Thank you sir. Thank you sir. And very happy धम्म परिवर्तन दिनाच्या चांगल्या शुभेच्छा आपणास. Yes sir.